بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں محمد ناصر اپل اپنے کیمرہ مین محمد عامر اپل کے ساتھ اردو نیوز کے پلیٹ فارم سے میں موجود ہوں اس وقت ایم اے جنرل روڈ کے اس مقام پر جسے گل پلازا کہتے ہیں. اور گل پلازا میں آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز ایک آگ بڑھ اٹھی تھی جس کے بعد گل پلازا میں آگ لگ گئی. اس وقت بھی امدادی کام سرگرمی میں جاری ہیں اور آج 20 جنوری شام کے تقریباً 7 بجے کا وقت ہے. اندھیرا ہو چکا ہے اور اندھیرے میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھائے گا کہ اس وقت بھی گل پلازا میں دھواں اٹھ رہا ہے اور دھواں کی شدت جو ہے وہ کتنی ہے اسی وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تقریباً کوئی 10-15 کے قریب یا فائر بریگیڈ کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور وہ اپنے عملہ سمیت اس وقت بھی آگ بجھانے کی شدید کوشش کی جا رہی ہے. آگ تو بجھ چکی ہے لیکن ابھی بھی اس کی ہیٹر اتنی باقی ہے کہ اس وجہ سے بھی دھواں محسوس ہو رہا ہے. پولیس کی بھاری نفری یہاں موجود ہے اور بے پناہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. اور بارڈر کراسنگ کر کے علاقے کو جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. وہاں پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں. اس وقت میڈیا کے پولیس کے لوگوں کے آپ دکھا سکتے، میرا کیمرہ آپ کو دکھاتا ہے کہ کتنے اس وقت امدادی کارکن جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وہ دیکھیں کہ ابھی بھی دھواں اٹھ رہا ہے. ابھی بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ دھواں کی کتنی شدت ہے اور اتنی بلڈنگ اتنی ہیٹ اپ ہے کہ ہم اندر بھی نہیں جانے دیا جا رہا. کوشش کر رہے تھے کہ ہم اندر سے آپ کو دکھائیں لیکن ہمیں اندر سے نہیں جانے دیا جا رہا کہ بلڈنگ کی حالت جو ہے وہ تشویشناک حالت میں ہو چکی ہوئی اور بلڈنگ کسی بھی لمحے گر سکتی ہے. اس وقت بھی اندازے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کے اندر کتنی لوگ موجود ہیں اور کچھ زندہ ہیں یا زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں یا لوگ اپنے آخری لمحات کو پہنچ چکے ہیں. اس وقت ہمیں بھی اندازن سے بات کر سکتے ہیں. یہ ہے جی گل پلازا کا وہ مین علاقہ، وہ مین گیٹ جہاں میں ایک میں آپ کو امدادی گاڑیاں کام کرتی نظر آ رہی ہیں. میونسپلٹی کی لائٹ آن جلد گزر رہی ہے، امدادی کارکن کھڑے ہوئے ہیں، مسلسل دھواں اٹھ رہا ہے، لمبی قطار لگی ہوئی ایک لائن کی. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دھواں آسمان سے باتیں کر رہا ہے. اس وقت امدادی کام جاری ہے. آپ کو ہمارے کیمرہ مین محمد عامر دکھا رہے ہیں کہ جہاں تک ہماری جنریٹر کے کام کری ہے، لائٹ جلی ہوئی ہیں، امدادی کارکن مصروف ہیں اور چیپا کی ایمبولینس کی بڑی تعداد موجود ہے، فائر بریگیڈ کی بڑی تعداد میں موجود ہے، پولیس والے موجود ہیں اور عام پبلک بھی اس وقت موجود ہے. لیکن دھواں جو ہے ابھی بھی آپ کو اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور جیسے جیسے ہمیں آگے رپورٹ کی خبریں ملتی ہیں کہ ہم آپ کو آگے رپورٹ کرتے رہیں گے. گل پلازا کے اس جگہ پر میں موجود ہوں. ہمارے امدادی کارکن آئی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. آپ کا نام بتائیے گا پہلے. محمد خضر خان میرا نام ہے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ شعبہ خدمت خلق کراچی ڈویژن کی ذمہ داری ہے. جب یہ حادثہ ہوا اس وقت آپ کہاں تھے؟ جب یہ حادثہ ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پر آتے سلگی شروع ہوئی ہے، ہم نے فوری طور پر اپنے کارکنان کو یہاں پر بھیجا. جس رات یہاں پر آگ لگی تھی سب سے پہلا کام ہم نے یہاں پر ریسپونڈ کر کے کیا کہ جو باہر کی دکانوں میں لوگ بچے ہوئے تھے، تالے توڑ کر گرلز توڑ کر وہاں سے لوگوں کو باہر نکالا گیا. اسی کے ساتھ جو سامان موجود تھا وہاں سے پھر پہلے دن ہم نے یہ والی ایکٹیویٹیز کی ہیں. کتنے اپنے کارکنوں کو وہاں سے نکالا ہے؟ کتنے ہم سمجھتے ہیں کہ جس وقت یہ آگ لگی ہے درجنوں لوگ اس وقت عمارت کے اندر موجود تھے جو باہر نکلنا چاہ رہے تھے اور کئی سارے تاجر ایسے تھے جن کا سامان اندر پھنسا ہوا تھا اور ان کے پاس کوئی آلات موجود نہیں تھے. یہاں پر فوری طور پر پہنچ کر ان کی جو چیزیں تھیں ان کو ریکور کیا گیا. وہ جو لوگ اندر تھے درجنوں کی تعداد میں تھے، لاتعداد تھے، کوئی کاؤنٹ موجود نہیں ہے، ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا. اچھا، ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں مسلسل دھواں اٹھ رہا ہے، ابھی بھی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں. کیا بلڈنگ اندر سے ابھی بھی ہیٹ اپ ہے؟ سر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک آپ صرف آؤٹر سرفیس پر کام کر پا رہے ہیں، اندر نہیں جا پا رہے. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ ہیٹنگ ہے اور بہت زیادہ سفوکیشن ہے. اندر جا کر کام کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے پانی ڈال رہے ہیں اور دھواں اٹھ رہا ہے، بہت زیادہ سفوکیشن ہے. بغیر ریسپیریٹری ماسک کے، بغیر ہیلمٹس کے آپ کے لیے اندر جانا مشکل ہے. چیزیں اوپر سے گر رہی ہیں، سانس آپ سے لی نہیں جا رہی. بہت دشوار صورتحال ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اندر ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں؟ دیکھیں لوگوں کی جانوں کا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے مسنگ پرسنز ہیں. 65 to 68 مسنگ پرسنز بتائے جا رہے ہیں. اسٹل بہت ساری فیملیز یہاں پر سراؤنڈنگز میں موجود ہیں جو اپنے پیاروں کے لیے آئی ہوئی ہیں. لوائقین موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اندر لوگ ہیں. اب وہ کارپسز کی صورت کے اندر موجود ہیں یا زندہ ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. زخمیوں کی امداد کے لیے آپ نے سب سے پہلے ان کو کہاں شفٹ کیا؟ دیکھیں زخمیوں کو یہاں پر سب سے پہلے جو قریبی سرکاری اسپتال ہے سول اور جنا لے کر جایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ زخمیوں کی تعداد کم ہے اور جو مسنگ پرسنز ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے.
अच्छा, इसके हादसे के बाद जो हुकूमती इक़्तिदार के लेवल को बंदा यहाँ पर सियासी बंदा को यहाँ पर आया। सियासी लोग तो जी आ रहे हैं, आपके सामने मामला है। 4 दिन इस मेट्रोपॉलिटन सिटी में एक संगीन आग को हो गए। आप यहाँ पर देखेंगे अमले के पास जो रिसोर्सेज होनी चाहिए उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं की गई हुकूमती लोगों की जानिब से। 2 स्नार्कल सिर्फ लगी हुई आग बुझाने के अंदर, मल्टीपल स्नार्कल्स को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया जा सकता? जो रेस्क्यू हजरात अंदर काम कर रहे हैं उनके पास रेस्पिरेटरी मास्क नहीं है, ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनकी कहाँ है, रेस्पिरेटरी मास्क उनके कहाँ है, हेलमेट्स उन्होंने नहीं लगाए हुए, ग्लव्स उन्होंने नहीं पहने हुए। भाई इस तरीके से कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन होगा? ये बहुत बड़ी हुकूमती गफलत है जो अभी तक जारी है। आपके कहने के मुताबिक यहाँ पे हेलीकॉप्टर इमदाद हो सकती थी। सर सब कुछ हो सकता था, पानी की जगह केमिकल्स और फोम का इस्तेमाल किया जा सकता था, स्नार्कल 2 के बजाय 6 लगाई जा सकती थी। जहां फायर फाइटिंग का अमला 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा वो 10 मिनट में पहुंचाया जा सकता था। अमला आता है वो कहता है पानी मौजूद नहीं है, वो पानी पहुंचाया जा सकता था। करने को बहुत कुछ हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। अच्छा, एक खर्चा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि जैसे कि इससे पहले बॉर्डर मार्केट में आग लगी थी फायर की वजह से, तो ये भी क्या कह सकते हैं कि शायद दहशत गर्दी की भी करामत हो, क्योंकि हो सकता है कि भत्ता खारी की पर्ची दोबारा चल पड़ी है, यहाँ के राजा को भत्ता की पर्ची ना दी गई हो, भत्ता ना दी उनको केमिकल से आग लगाई गई हो। क्या ऐसा मुमकिन है कि या केमिकल से लगी है, शॉर्ट से लगी है? यार दहशत गर्दी की बात जहां तक आएगी उसके ऊपर हम श्योर है नहीं है, लेकिन एक जुर्म अजीम है जो यहाँ पर किया गया। अगर आप दहशत गर्दी को इनाम दे दें कि कोई दहशतगर्द सामने असले की जोर पर किसी को मारता है, तो ये क्या कोई कम दहशत गर्दी है कि मरते हुए को आप बचाओ नहीं, आपके पास तमाम तर सहूलियात मौजूद हो? ये भी एक टाइप की दहशत गर्दी है जिससे लोगों को नुकसान पहुंचता है। खैर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कोशिश की जा रही है कि लोगों को बचाया जा सके। क्या हम ये कह सकते हैं कि तकरीब करी या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी? अभी तक इब्तिदाई रिपोर्ट्स ये कि शॉर्ट सर्किट हुआ, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप थी, लेकिन उसको अगर बर वक्त काबू पाया जाता है तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि इतनी तेजी से आग फैली है वो शॉर्ट सर्किट से नहीं फैल सकती। देखिए आग फैलती गई, 1.5 घंटे तक कोई यहाँ पर अमला मौजूद नहीं था, फायर ब्रिगेड्स मौजूद नहीं थी। अगर 15 से 20 मिनट में रिस्पांस टाइम होता तो वो आग बुझाई जा सकती थी। 1.5 घंटे तक इंतजार किया और उसके बाद फिर ये आपके पीछे सारा कुछ सानिया खड़ा हुआ है। अच्छा, अभी यहाँ की कोई कमेटी में से लवाकिन मौजूद है? लवाकिन में से कोई जाने वाले हैं? कोई किसी कमेटी के जिम्मेदार बनने से बात कर सकते हैं हम? देखिए यहाँ पर कई सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त वो बड़ी परेशानी की सूरत हाल के अंदर मौजूद है। हमारा पीछे कैंप भी लगा हुआ है मरकजी मुस्लिम लीग की, वहां पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ फैमिलीज मौजूद हैं। साथ ही साथ मुख्तलिफ कैंप्स के ऊपर और डीसी ऑफिस के अंदर भी कुछ फैमिलीज बैठी हुई है। सराउंडिंग्स में लोग जरूर मौजूद है। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सानाए गुल प्लाजा के बिल्कुल मेन बिल्डिंग के सामने। इस वक्त जमे गफी यहाँ मौजूद है और रेंजर के एहलकार और तमाम दीगर इमदादी कारकुन पब्लिक को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अकब में आपको कैमरामैन दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग का वो हिस्सा है गुल प्लाजा का जो कि नीचे गिर चुका है। इस मलबे के तले कितनी जाने हैं, कितने लाखों अरबों रुपए का माल है, इस बिल्डिंग के नीचे क्या चीज है क्या नहीं है, अभी कुछ इसके बारे में मालूमात नहीं है। गुल प्लाजा की मखदूश हालत में जो इमदादी सरगर्मी है जारी है, इमदादी काम टीमें अपना काम कर रही हैं। वहीं एक लवाकिन हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करें। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कि आप यहाँ पे किसकी इंतजार में हैं और यहाँ पे क्यों खड़ी हुई हैं? मेरे दामाद की दुकान थी अंदर, जो दामाद की मेरे दुकान जल चुकी है। अच्छा, नीचे अभी मैगजीन अभी के अपने अंदर। दामाद कहाँ पर हैं? मेरे दामाद अपने घर में हैं, उनके सारा पैसा अमाउंट सब कुछ चल गया है। मेरी बेटी भी किसी हाल से थी। आपके दामाद जख्मी हुए थे हालत में? नहीं, अल्लाह ताला ने अल्लाह का उनको शुक्र बचा है कि लिया, आपके शुक्र दामाद है। सही हालत लेकिन में। ये तो दूसरे भाई, मेरे भाई है जो बच्चे हैं जो इसके अंदर है, वो तो जल गए। उनके लिए तो कम से कम हुकूमत को आना चाहिए ना, हुकूमत आए देखे इन लोगों के लिए क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कोई बड़ा तो आए, कोई यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा। पानी इतनी जल्दी जल्दी खत्म हो गया है, आग बुझाने के लिए इतनी देर से गाड़ियां आई। अगर वक्त पे आ जाती तो आज ये नहीं होता। इन लोगों को सोचना चाहिए था कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। ये एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है कि मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिनके दामाद जो हैं वो, उनकी यहाँ दुकान थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि दामाद सही सलामत है, घर पहुंच गई। दुकान का नुकसान तो हो गया सो हो गया, लेकिन अभी मैं ये पूछता हूँ कि आप में आपके दामाद तो चले ठीक है, अल्लाह का शुक्र है वो खैर वापस से मौजूद हैं, तो अब आप किसकी यहाँ पर में किसके इंसान खड़ी हैं? इसलिए खड़ी हूँ, मेरे को तो ये दुख हो रहा है कि पता नहीं कितनी माओ के लाल जल गए, कितने बहनों के सुहाग उजड़ गए। लोग कहाँ अंदर है कहाँ नहीं, किस तरह निकाला जाएगा उन्हें, किस तरह नहीं। मैं ये सिर्फ देखना है कि ये हो क्या गया, बस मुझे इस चीज का दुख है और किसी चीज का नहीं।
माल तो बना ये कराची की अवाम, ये कराची की वो खातून, कराची की माँ जिनकी अपने दामाद के अलावा उनको दूसरों की फिक्र है, दूसरे बच्चों की फिक्र है, जो माँ उनकी उन बेटों की फिक्र है, जिनकी माएँ, जिनकी बहनें, जिनके भाई इंतजार कर रहे हैं कि हमारे प्यारे अभी आएंगे अभी आएंगे। हालांकि इनके रिश्तेदार जो अपनी खैर वाफिस अपने घर मौजूद हैं, लेकिन दूसरों के दुख दर्द को समझते हुए यहाँ पर आए हैं, तो उनके लिए दुआ की खुसूसी जरूरत है। शुक्र है मिल गया। साना गुल प्लाजा में जहाँ हर तरफ इमदादी काम जारी है, मुख्तलिफ लोगों ने अपनी इमदाद के तहत और मुख्तलिफ सरकारी इदारों ने, गैर सरकारी इदारों ने कैंप्स लगाए हुए हैं। वहीं पर मेरे अकब में आपको मेरा कैमरा दिखाएंगे कि सदर टाउन की जानिब से एक मेडिकल रिलीफ कैंप लगाया गया है और इस मेडिकल कैंप के अंदर भी लोग बैठे ड्यूटी दे रहे हैं, रजाकाराना तौर पर अपना काम कर रहे हैं। मेरा कैमरा आपको दिखाएंगे कि जहाँ तक हद निगाह जारी है, शिफा की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं और ये मेडिकल कैंप भी लगे हुए हैं मुतासरीन के लिए और अपनी मदद आपके तहत जहाँ पर लोग इनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं। साना गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए मुख्तलिफ अपने इमदादी कैंप लगे हुए हैं और कुछ सरकारी और कुछ गैर सरकारी तौर पर भी काम कर रहे हैं। इन्हीं में जहाँ पर इमदादी कार्रवाई की जा रही है, वहाँ पर सियासी तंजीमों की जाने से भी अपनी मदद आपके तहत कैंप लगाए गए। ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ PTI की तरफ से बने गए रिलीफ कैंप में और हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइए कि इस हादसे के बारे में क्या डिटेल्स आपके पास हैं? बस ये सानिया तो जो हुआ है अफसोसनाक है और जब आग लगी थी तो 1.5-2 घंटे या 2.5 घंटे के बाद आए। अगर थोड़ा बहुत भी आ जाते तो कुछ जाने और बच जाती। अभी मेरे पास मेरे अपने इलाके का था, मैं खुद इधर का MLA हूँ, ये मेरे हल्के में आता है, ये आखिरी कोना है मेरा 240 का। तो बस यही कहेंगे कि देखो खान साहब ने जो दिए थे फायर ब्रिगेड, आज माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं। इन्होंने तो कुछ नहीं बढ़ाया और आते भी थे तो उसमें पानी नहीं है, पानी की किल्लत है हर चीज़ की। तो इस मुल्क के अंदर अल्लाह इनको बस ये 18 साल से अपनी हुकूमत कर रहे हैं, कभी भी अवाम के बारे में नहीं सोचा। सर मैं यहाँ से जब से मैंने लोगों से मुख्तलिफ असरात लिए हैं, लोगों का ये कहना है कि इतनी जल्दी से इतनी तेज़ी से आग फैली है, इतनी तेज़ी से शॉर्ट सर्किट आग नहीं फैलती। क्या ये तहरीरकारी की गई है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों मैं किसी के ऊपर डालूं या किसी के बारे में कोई बात करूं? और कौन शख्स ऐसा करेगा? ना तो अब कोई भत्ते वाले रह गए, ना कोई पर्ची वाले थे, ना किसी ने कोई से ज़बरदस्ती की है। ये कुछ ऐसा हादसा हो गया है, हम किसी के ऊपर या कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। हाँ, किसी ने देखा है या किसी को ऐसा थ्रेड आया है या किसी को बोला गया हो कि हम आपके साथ हुआ, आदमी ना आकर बयान दे तो हम इस पे बात। जितनी तेजी से ये आग फैली है, अगर हम पिछली आग का मवाजना करें, बोल्डन मार्केट में एक दफा ऐसी आग लगी थी और वो भी किसी पाउडर के जरिए फैली गई थी, सफूफ के जरिए फैली गई थी। जितनी तेजी से वो आग फैली इतनी तेजी से ये भी आग फैली है, इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, इसके अंदर ये है कि अभी अभी हमारे अपने मोहल्ले का और मेरा रिश्तेदार भी है, इसका एक बच्चा तो अंदर इंतकाल कर गया और 2 हमारे दूसरे भी PTI के कारकुन थे, उनकी भी दुकान, उन दोनों का इंतकाल हो गया। एक की लाश निकल गई, एक की अभी बकाया है। मगर मैंने जो ये ऊपर से जिसने जंप मारा है, अभी मेरे पास खड़ा हुआ था, मैंने आपसे भी बात की, उसने यार मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, मैं थोड़ा ही। तो वो टेंट वाली गाड़ी जा रही थी तो उसको रुकवाया, तो उसके अंदर जो कपड़े के टेंट थे तो उसके ऊपर 4 जनों ने जंप मारे। ये टोटल 21 थे
21 के अंदर से बाकियों ने बोला नहीं हम उधर से दुकान बंद करके बैठेंगे। वो बाकी 17 जो है बस अल्लाह उनको खैर सज़ा दे, अल्लाह करे कि अब भी कुछ जिंदा हुए, अब भी कुछ उम्मीद है कि अल्लाह बेहतर करे और कुछ ना कुछ हो जाए। पर पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत तो कुछ तो करना चाहिए और इनका जितना नुकसान है ये भी भरे। और सिंध गवर्नमेंट इनको कहाँ अपने जेब से देना है, वो जितने खाने हैं उसमें से दे रही है कि भाई कुछ ना कुछ तो इसको करके देवे। एक बिल्डिंग इनके लिए कुछ भी नहीं रखता है, क्योंकि इनके पास कई 100,000 अरब रुपए सालाना बजट आता है। उस बजट के अंदर से कराची शहर में गटर का ढक्कन तक नहीं लगता। तो ये इनकी हालत है। कम से कम जो आज ये इन लोगों ने ईद का सीजन था, कुछ उधारियां लेके कुछ कर्जे लेके सबों ने दुकानें भरी हुई थी। एक शख्स तो मेरे पास आया, मेरे को बोलता है मैंने 22 करोड़ रुपए का सामान डाला है अभी रमजान भाई 2 दिन पहले। तो होलसेलर है, इन्होंने सब ने डाला है, ऊपर सबके बड़े गोदाम थे। तो मैं सिंध गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर नज़रसानी करे, बल्कि नज़रसानी ना है, इसकी ये बिल्डिंग को पूरी बना के दे और इनको कुछ मुआवजा भी दे। हर दुकानदार को कुछ ना कुछ दे तो ताकि ये खड़े हो जाए। क्योंकि एक लोग तो ऐसे भी थे कि मैं तो आज तो ज़कात के ऊपर आ गया हूँ कि कर्जे भी चढ़ गए, सब चढ़ गए। तो अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे। और बाकी हमसे जो हो सकता है इधर खाना, ये जो कारकुन काम कर रहे हैं, हम अपने जेब से अली मादिल शेख साहब ने हमको पूरा, हमारे सिंध के सदर है, उन्होंने कहा हुआ है, राजा अजहर ने और यासिर भाई और ये सब टीम बैठी हुई है, जो हमसे हो सकता है। हम कल भी इधर ही थे, आज भी है, और इंशाअल्लाह ताला जितना हमसे जो भी हो सकता है। ये है कि हमारी इतनी ताकत में तो नहीं है कि हम पूरी बिल्डिंग, और ये हाँ अगर हुकूमत होती, वफाक होता हमारा, मैं ईमान से बोलता हूँ कि मैं इसके लिए लड़के कुछ ना कुछ लेके आता, नहीं तो पार्टी छोड़। बहुत शुक्रिया।